وصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان کما قال اللہ تعالی ان الشیطان الانسان عدو مبین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله. ابھی ہمارے محب گرامی قدر قارئین صاحب نے بڑی عمدہ باتیں کہیں. یقینی طور سے خوف خدا ہمیں رکھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق ہمیں قدم بڑھانا چاہیے, عمل پیرا ہونا چاہیے. نجی صاحب کی تلاوت کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ, شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان ان شیطان انسان عدو مبین, شیطان انسانوں کا خصوصی طور سے مومنوں کا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے. جب اسلام قبول کیے تو دین موسوی میں اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ پینا وہ منع تھا. تو آپ اسے پرہیز کرنے لگے یہ سوچ کر کے کہ مذہب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا ضروری فرض واجب نہیں ہے, اور دین موسوی میں اس کو منع کیا گیا تھا, تو ہم کیوں نہ اونٹ کا گوشت کھانا ترک کر دیں کہ اس پر بھی عمل ہو جائے گا. ادھر سے کوئی رجم بھی نہیں ہے, اونٹ کا گوشت کھاؤ ہی, ادھر ضروری بھی نہیں ہے, اور ادھر سے ہم بچ جائیں گے کہ ادھر منع تھا تو منع پر ہمارا عمل ہو جائے گا. آیت کریمہ کا نزول ہوا کہ اے ایمان والوں اسلام میں مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. وہ نئی کھانا نہ کھاؤ, لیکن یہ سوچ کے کہ نہیں کہ دین موسوی میں وہ منع تھا تو اس پر بھی عمل ہو جائے گا. اب تمہارے سامنے جو نبی کا فرمان ہے اس کے اعتبار سے تمہیں عمل کرنا پڑے گا. محترم حضرات, اسے پتہ چلا جب ایک ادنا سی چیز, حالانکہ ان کا گوشت کھانا کوئی ضروری نہیں تھا, لیکن صرف یہ سوچ لینے کی وجہ سے آیت نازل ہو گئی کہ دین پر اگر تم دین میں داخل ہوئے ہو تو مکمل طور سے داخل ہو جاؤ. کسی بھی مذہب سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے, نہ کسی مذہب سے مشابہت ہونی چاہیے کسی عمل میں یا پہننے میں, اوڑھنے میں, چلنے پھرنے میں. اسی لیے رسول پاک نے ارشاد فرمایا بہت سارے معاملات میں من تشبہ بقوم فہو منہم. غلط معاملوں میں, ناجائز اور حرام امور میں اگر بندہ کسی قوم سے, کسی مذہب سے, کسی آدمی سے اگر مشابہت رکھتا ہے تو اس معاملے میں وہ اسی قوم سے ہے اور اسی آدمی سے وہ شمار کیا جائے گا. محترم حضرات, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا طبقہ جو ہے وہ ظاہری طور سے دنیاوی چکا چوندھ اور جو دنیوی زندگی کے جو مراحل ہیں اس سے وہ مرغوب ہو کر کے ان چیزوں کو وہ اپنی زندگی میں بسانا چاہ رہا ہے. جیسے مان لیجیے کہ ابھی وہ بڑے دن کا مسئلہ تھا 25 دسمبر کا مسئلہ تھا. اس میں پتا چلا کہ یہ دن بڑا ہونے والا ہے, کرسمس ڈے ہے, تو اپنے مسلمان بھائی بھی جو ہیں اس میں بہت سارے لوگ اس میں شریک ہو کر کرسمس ڈے منانے کے چکر میں بہت رول جلول حرکتیں کیے. اس میں کہیں پارٹی ہے تو کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, کرسمس ڈے کے نام پر اس میں کیے. پھر پتا چلا کہ جیسے ہی انگریزی اعتبار سے, عیسوی اعتبار سے جیسی سال اللہ رات میں بہت سارے پٹاخے پھوٹے, تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ غیروں نے کیا ہوگا, لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی احباب اس میں شریک ہوئے ہوں, تو اس سے بھی ہم کو بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد دیکھیے ابھی فروری کا مہینہ آئے گا
तो उसमें वैलेंटाइन डे कोई दिन आता है तो पता चलता है कि उसमें हमारे अहबाब जो नौजवान भाई हैं तो वैलेंटाइन डे के ताल्लुक से फिर वो भी दुनिया मामलात में मशगूल हो जाते हैं। कहीं पार्टियां हैं तो कहीं शराबखोरी है तो कहीं जुआबाजी है तो कहीं गलत जगहों पर जाना है। फिर वो खत्म होगा, फिर नीचे अप्रैल का महीना आएगा तो उसमें अप्रैल फूल के नाम की कोई तारीख आती है जिसमें लोग बेवकूफ़ बनाना ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, झूठ बोल करके गलत इल्ज़ाम लगा करके इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो देखिए इस्लाम इसी का नाम है कि हम मुकम्मल तौर से इस्लाम में दाखिल हो जाएं। अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि ये ईमान वालों उदखुलू फी सिल्म काफ़ा, मुकम्मल तौर से, ये नहीं कि थोड़ा सा इधर भी लगा रहे थोड़ा सा उधर भी लगा रहे, थोड़ी सी उधर भी दोस्ती में हम पता चला कि शरीयत के खिलाफ हम अपने कदमों को निकाल रहे हैं, कुछ गलत चीज़ें खा पी ले रहे हैं, गलत चीज़ें भूल भी रहे हैं। अल्लाह की पनाह अल्लाह ताला हम सब की ईमान की हिफाज़त फरमाए। तो मुकम्मल तौर से हमको चाहिए कि हम अपने आप को बचाएं। और कुरान करीम में अल्लाह ने ये इरशाद फरमाया है कि या अय्युहन्नासु अनफुसकुम व अहलिकुम नारा कमा क़ाला ताला, ये ईमान वालों अपने को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहल व अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो जी तो ज़रूरी है कि हम खुद इन चीज़ों से बचें। शराबखोरी है, शराब के अड्डे हैं या गलत चीज़ें, किसी धोखा देना है, किसी का मजाक उड़ाना है या शरीयत के खिलाफ काम है, तो जिस तरीके से हम खुद अपने आप को बचाते हैं इसी तरह से हम चाहे तालीम कर करके हो, चाहे तरबियत के जरिया हो, चाहे दूसरे से सुनवा करके हो, चाहे खुद पढ़ा करके हो, चाहे घर में बिठा करके हो, चाहे जिस भी तरीके से हो। ऐसे तो मोबाइल है, पता चल रहा है कि हम अपने औलाद को रोकना चाहें तो भी नहीं रोक पा रहे हैं, इसलिए कि अब दुनियावी उमूर इस तरीके से कंप्यूटराइज हो चुके हैं, ऐसे जुड़ चुके हैं कि अब हर काम में पता चल रहा है कि बिना मोबाइल के सारे कुछ होने वाला नहीं है। तो बहरहाल मोबाइल अगर हम चला रहे हैं या हमारे बच्चे चला रहे हैं तो हम अपने बच्चों की निगरानी करें कि हमारे बच्चे किस तरीके से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या फिर हमारे बच्चों की दोस्ती किन बच्चों से है। देखिए बहुत सारे लोग जो इस वक्त में गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत संगत के बिना गलत दोस्ती मिल जा रही है, गलत दोस्त मिल जा रहे हैं। अरे यार चलो घूमने चला जाए फलां चौराहे पर, फलां दुकान में, फलां रेस्टोरेंट में। अब वहाँ जाने के बाद में पता चला कि अगर 5 दोस्त हैं उसमें 4 शराबी हैं और एक बेहतर है नमाजी है, तो उसको घसीट के ले गए तो पता चलेगा कि एक बार मना करेगा नहीं हम इसे हम नफरत करते हैं, अच्छा चलो कोई बात नहीं किनारे बैठो, 2 बार हुआ 3 बार हुआ, अरे थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करके देखो तो पता चला अच्छा भाई लाओ थोड़ा सा इस्तेमाल करके दें, इस्तेमाल किया पता चला उसका आदि हो गया। वो बियर पीते हैं जी, हाँ बहुत बियर पीते हैं, अब नाम बदल दिया हाँ इस ताकि अब उसकी वो जो हुर्मत है वो लोग के साथ ना जाए कि शराब पीते हैं अब बियर पीते हैं, तो मतलब और भी नाम दे करके। तो अब ये गलत संगत की बना पर ये गलत आदतें भी हमारे जो कौम के हमारे बच्चे हैं। और आप जानते हैं कि हम लोग का ज़माना उम्र के हिसाब से तकरीबन 2/3 तो ख़त्म ही हो गया। मेरा आपका इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 के दरमियान हो गई, तो 45-50 की उम्र हो गई। अब अल्लाह खैर फरमाए जो अवकाल गुजरे अल्लाह रसूल की याद में गुजरे। लेकिन जो नौजवान नस्ल है वो खुसूसी तौर से नौजवान नस्ल ही के ऊपर मुकम्मल दीन का दारो मदार होता है। आप और हम जब इस्लाम की तारीख पर का मुताला करेंगे तो पता चलेगा कि इस्लाम हमको सरबुलंदी अता करने में अल्लाह के फजल से हमारे नौजवान भाई ही आगे बढ़े हैं कि इस्लाम को अल्लाह ने सरबुलंदी अता फरमाई है। और अपने एतबार से बुजुर्गों की दुआएं रही हैं, बुजुर्गों की सरपरस्ती रही हैं, तो बुजुर्गों की सरपरस्ती रहेगी, बुजुर्गों की दुआ रहेगी तो दुआएं भी काम आएगी और उनके बताए हुए रास्ते जो होंगे तो तरबियत वाले रास्ते उस पर भी आदमी अमल पैरा होगा। तो हम मोबाइल देखें, अगर कोई अच्छी चीज़ हमको नज़र आए तो हमने बच्चों शेयर करें कि देखो ये फ़िलहाल में दीन ने ये कहा है या कुरान करीम दिया है तो इसमें डरने के ताल्लुक बताया जा रहा है, या कोई इसमें ऐसा वाक़या है कि जिसमें खशियत का कोई जिक्र है या हमको इससे ये सबक मिलता है, हमको इससे ये दर्स मिलता है, हमको अपनी ज़िंदगी में इसको दाखिल करना चाहिए। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो तरबियत के ताल्लुक से बहुत बेहतरीन असबाब पर वो मुश्तमिल हैं। तो और फिर बच्चों के ध्यान में भी ये डालना चाहिए कि दुनिया नहीं देख रही है, हम नहीं देख रहे हैं कि अल्लाह ताला तो वला सिनतु वला नौम, न उसको ऊँघ आती है न उसको नींद आती है, वो तो वो देख रहा है। अब देखिए लाइट है, आग है, हम अपने हाथ में नहीं लेना चाहते हैं,
कोई ज़बरदस्ती हाथ में पकड़ाए तो हम नहीं लेना चाहते हैं, हम लाइट से दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्यों? इसलिए कि लाइट के पास जाएंगे हम हलाकों बर्बाद हो जाएंगे। अपने बच्चों को रोकते हैं कि इसके पास न जाओ। तो अगर हमें अल्लाह का खौफ होता हमारे दिल में तो हम अपने को भी, अपने बच्चों को भी इसको समझाते बताते कि इस लाइट की जो ये आग है, ये इससे कई हजार गुना तकलीफ जहन्नम की आग है, इससे कई हजार तकलीफ देने वाली, ईजा देने वाली जो आग है वो जहन्नम की आग है। तो ये खौफ इस तरीके से हम अपने दिल में भी और अपने बच्चों के दिलों में, बच्चियों के दिलों में और नस्लों के दिलों में डालनी चाहिए। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालों, इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी न करो। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो अब कभी तो वो जैसे हमारे हज़रत ने बयान किया, कभी ऐसा भी होगा कि वो कहेगा कि अच्छा ठंडा का वक्त है, अज़ान हो गई है, अगर ठीक है अभी पानी गर्म करेंगे तो वज़ू बना लेंगे। उसके बाद फिर आधा घंटा, अच्छा ठीक है जमात तो निकल गई होगी, फिर उसको दूसरे में पढ़ लेंगे। जो दूसरा वक्त आया, अब जा रहे हैं मार्केट में जा रहे हैं, ऐसा सारी नमाजें ऐशा में एक ही बात पढ़ लेंगे। और पता चला ऐशा में कहीं दावत हो गई तो अच्छा ठीक है, अल्लाह ताला तो माफ़ फरमाने वाला है, चलिए कल पढ़ लेंगे। इस तरीके से कभी ऐसा कि जैसे गलत चीज़ें हैं, हंसी मजाक में बंदा झूठ बोल देता है। मतलब ये है कि वो ऐसे ऐसे ज़राए से हमको धोखा देना चाहता है। मैं कई जगह को कहा भी कि कभी नेकियों के वास्ते भी धोखा देता है। मतलब हमें बैठे हैं, 10 लोग बैठे हैं, हमारे ध्यान बात आई कि लाओ 100 बार तस्वीर पढ़ लेते हैं। हमने तस्वीर गिनना शुरू किया, फिर हमारे ध्यान बात आई कि यहाँ पढ़ोगे तो लोग कहेंगे कि मक्कारी कर रहा है, हाँ यहाँ पढ़ोगे तो लोग कहेंगे मक्कारी कर रहा है। ऐसा छोड़ दो, चलेंगे अब जब सोने के लिए बिस्तर जाएंगे तब जाकर तस्वीर पढ़ेंगे। अब जब कई धोखा दिया कि लोगों के सामने अगर पढ़ोगे तो लोग तुमको मक्कार कहेंगे, हाँ इसलिए इबादत खुल कर नहीं, इबादत नफली इबादत छुपा करके करो। अब इस तरीके पता चला हमको धोखा दे दिया, हमने फिर तस्वीर को अपने जेब में रख लिया। अब पता चला कि अब सोने के वक्त में कौन तस्वीर गिनता है, लिहाज हमने ताना उसके बाद। तो वो ऐसे ऐसे ज़राए से हमको धोखा देना चाहता है कि हम नहीं समझ पाते हैं कि कैसे हमको धोखा दे देगा बारह। और प्यारे आका ने इरशाद फरमाया कि मैं नमाज पढ़ने के लिए गया तो वो शैतान जो लोगों को वो नमाज में वसवसा डालने के लिए आता है, मेरे पास में आया। अब देख कितना बड़ा ये पावरफुल है, अल्लाह ने कितना पावर दिया है। प्यारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गया उनको डिस्टर्ब करने के लिए। आका करीम फरमाते हैं कि मैंने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके मेरे ध्यान बात आए कि इसको जो मस्जिद है मदीना नबी शरीफ, कहा कि मेरे ध्यान में आया कि इसको इसी खम्भे में बांध दूं और मदीना के बच्चों को बता दूं कि बांधा हुआ वो आकर खुद इसकी पिटाई करेगी इसकी खूब पिटाई करें। फरमाते हैं कि जब आया मेरे पास में तो मैंने उसको पकड़ लिया और पकड़ कर सोचा कि खम्भे में बांध दे रहा हूँ और फिर मदीना के बच्चों को बुला दे रहा है, इसकी पत्थर मार पिटाई करेंगे। फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि यह खासा मेरे भाई सुलेमान पैगम्बर का है कि अल्लाह ताला ने जहाँ पर इंसानों पर उनको सल्तनत अता की थी अल्लाह ने, उसी तरह से जिन्नातों पर भी उनको अल्लाह ने गलबा दिया था। तो ये उनका खासा था। फरमाते हैं इसलिए मैंने छोड़ दिया। इसीलिए देखिए इसे नमाज में आते हैं तो पता चलता है कि इमाम साहब नमाज पढ़ाते रहते हैं, बस मैं आखिरी बरल में इमाम साहब नमाज पढ़ाते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है कि जब वो रुकू अल्लाह अकबर कहकर रुकू में जाते हैं तब हम समझते हैं कि अरे हम तो रुकू में हैं। यानी पता चला कि अब इमाम साहब क़िरात कर रहे हैं, इमाम साहब जिम्मेदारी है तो हम कहीं और घूम रहे हैं, हम कहीं और टहल रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है वो सब शैतान का दखल होता है। कभी ऐसा हम खुद तन्हाई में नमाज पढ़ते रहते हैं, अपना कहीं पूरी नमाज हो जाती है और ध्यान में आता ही नहीं, कई रकात उसी में भूल जाता है। 3 रकात पढ़े कि 4 रकात पढ़े कि 5 रकात पढ़े कि 1 ही रकात पढ़े, तशहुद पढ़े कि नहीं पढ़े, दुरूद पढ़े कि नहीं पढ़े, हो जाता है। अल्लाह ताला इतना करीम है कि हर चीज़ का रास्ता प्यारे आका के सदक़े में सब बता दिया है। और आका करीम सब बता दिया, अगर ये कैफियत हो जाए तो ये ऐसा कर लो, वो कैफियत हो जाए तो वैसा कर लो। ज़ाहिर सी बात है हम इंसान हैं और हम कमज़ोर बंदे हैं, शैतान पावरफुल है तो वो घुमाने फिराने की कोशिश करता है। तो उसके लिए रसूल पाक ने इरशाद फरमाया अगर नमाज में ऐसा बार बार ख्याल आ रहा है, बार बार ध्यान भटक रहा है, पहले से फरमाया गया कि खड़े हो तो अपनी नज़र को सजदे के ऊपर जमा लें। देखिए अगर हम
قیام کی حالت میں ہیں اور ہمارا خیال کہیں اور چلا گیا، اس کا مطلب کہ ہماری نظر سجدے جگہ سے ہٹ گئی ہے۔ اگر صحیح جگہ پر رہے گی تو یقینی طور سے وہ شیطان ہم کو نہیں ورگلا سکتا ہے۔ وہاں سے نظر ہٹنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہیں کھو گئے، تو حکم یہ ہے کہ ہم قیام کی حالت میں ہیں تو جیسے سجدے کی جگہ پر، رکوع میں ہیں تو قدموں پر، سجدے میں ہیں تو ناک پر، اس طریقے سے الگ الگ طریقہ بیان کر دیا۔ دوسری بات یہ کہ نماز میں ہیں اور بار بار غلطی میں خیال آ رہا ہے، ذہن بھٹک جا رہا ہے، تو اس میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا وسوسہ ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی نہیں ہوتا ہے تو رکوع میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس میں ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد بھی وسوسہ ختم نہیں ہوتا ہے تو سجدے میں ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے بعد تو ختم ہو ہی جاتا ہے۔ تو دیکھیے اب وہی ہے کہ شیطان کیسے کسی بات آتا ہے، ہمارے ایمان کو بچانے والا ہمارا پروردگار ہے۔ ہم کو دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہماری ایمان کی بھی اللہ حفاظت فرمائے اور ہمارے آل اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت پروردگار عالم فرمائے۔ سب سے بڑی دولت مومن کے لیے، سب سے متاع کل جو کہا جاتا ہے، سرمایہ پونجی کہا جاتا ہے، اصل چیز ایمان ہی ہے۔ اگر ہم اس کو بچا کر کے اور یہاں سے چلے گئے، خاتمہ بالخیر ہو گیا ہمارا، تو سب سے بڑی پونجی ہمارے لیے یہی ہے، مومن کے لیے سب سے پونجی یہی ہے۔ اس لیے بھائی ظاہر سی بات سب جانتے ہیں کہ نہ کوٹھی جائے گی، نہ بنگلہ، نہ گاڑی، نہ گھوڑا، نہ وہ نہ یہ، نہ وہ، کچھ نہیں جانا ہے۔ اگر کوئی چیز جائے گی تو اصل چیز ایمان ہے اور اسی سے وہ آخرت میں ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مغفرت قربوں کو قبول فرمائے اور شیطان کے مکر و فریب سے ہمارے آنے والی نسلوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ استغفر اللہ